Ji, Assalamu alaikum. This is Dr. Yasir. Can everyone hear me? Okay, Ji. Let's start with some review, some recalls from previous lecture. Now it's your turn to answer a few of the questions. What do you understand by the term estimated average requirement? I want contribution from all of the class. So please try to contribute, every one of you. What is your understanding regarding the term year or estimated average requirement? Okay, Umar, you have answered 50%, but that the answer is not sufficient enough. You should be able to produce a complete definition. 50% of what, beta? कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं? You can say, you want to say gender wise, region wise, age groups. Acha, okay, rule number 113 has answered useful in estimating the actual requirement in groups. Okay, estimating what sort of actual requirement to fulfill what? That is my question. जी, ये तो डन हो गया, 50% ऑफ पॉपुलेशन इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है, बट एक्चुअल रिक्वायरमेंट कौन सी आप देख रहे हैं उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की उस पॉपुलेशन के अंदर? वो क्या करेगी टू फुलफिल व्हाट? ओके, डाइट. ओके, ओके, ओके. व्हाट अबाउट recommended dietary allowance, RDA? कितनी पॉपुलेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है? %98. So which one is better, the estimated average requirement or recommended dietary allowance? Okay, what about adequate intake? अगर प्री मेच्योर इन्फेंट और पोस्ट टर्म इन्फेंट की बात की जाए, अगर वो आपको एग्जांपल याद है तो आप इसको आराम से आंसर कर सकते हो. एडिक्वेट इनटेक. नो वीडियो, ऑडियो. जी, आवाज़ आ रही है आपको अब सही? ओके, अकील अहमद शाह, वुड यू लाइक टू चेक योर इंटरनेट कनेक्शन बिकॉज इट्स ऑल क्लियर फ्रॉम हियर. जी, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एडिक्वेट इनटेक? अच्छा, आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग. I mean, during almost all the lectures, there are few bunch of students, like 8 or 10, who regularly participate in the lectures. Where are the rests? कहाँ हैं बाकी सारे? This is a golden opportunity for you guys. You have got plenty of time to study. और ये पहला प्रॉफ आपका आराम से निकल सकता है. इतना टाइम आपको नेचर ने दे दिया है पढ़ने के लिए, घर बैठे हुए हो. And all you have to do is like attend 3 lectures a day. That is not a lot of time. और उसके बाद आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अगर पढ़ना चाहो तो आप इसी जो जितना टाइम गुजर गया इसके अंदर सारा सिलेबस कवर कर सकते थे. क्योंकि आपको पता है, आई मीन, कभी भी ये कोरोना की सिचुएशन सेटल होती है एंड यूएचएस विल अनाउंस द एग्जाम डेट्स, फिर जो हाथ पांव फैलाने हैं अपने, उससे बेहतर नहीं है अभी से पढ़ना शुरू कर दो. I can see very few people here, especially in the chat box, which are responding. Where are the rest of the students? Okay, again, roll number 113, a regular contributor. Okay. What about tolerable upper intake level?
जी, एनी आइडिया अबाउट टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल? इसके तो नाम से ही पता लग रहा है कि इसका क्या मतलब होगा। जी जी, एनी वन ऑफ यू who knows the exact answer, who knows the exact understanding of tolerable upper intake level? Okay, it's not basically the highest daily nutrient intake. हाँ ठीक है, which is safe. Yes, it's the right word. जिसके ऊपर अगर जाता है सिलसिला, अगर उससे ऊपर डोज चली जाएगी तो it can be toxic for your body. It can produce deleterious effects to the body. Okay, all right. So let's move on to today's topic. That was a little bit of revision. Okay, Ji, we were on this slide yesterday when I ended up the lecture yesterday. So, every one of us should know what are the benefits, the health benefits of fiber. Fiber is routinely used, it's highly recommended for consuming in your regular diet in order to prevent constipation, hemorrhoids, diverticulosis, or colon cancer even. ठीक है, इतना फ़ायदेमंद हो सकता है कि अगर किसी के अंदर टेंडेंसी है कोलोन कैंसर होने की, ठीक है, उसको वो डिले कर सकता है या उसको मिमिक कर सकता है। ठीक है, सो इतने फ़ायदे दे सकता है फाइबर। तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट फाइबर इन योर डाइट्स as well as your patient's diets. Functions of carbohydrates. As the yesterday's topic was consisting of carbohydrates, the basic outline of simple carbohydrates, complex carbohydrates, polysaccharides, monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides. So, as far as nutrition is concerned, you should be knowing about the different functions of carbohydrates in your body. The first most important function is to provide fuel. ठीक है, फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सबसे जो प्राइमरी सोर्स होती है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। देन कम्स अ प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ड्राइव्स एनर्जी फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्रोटीन। और हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो इमीडिएट सोर्स आपको पता है, जब भी आप एक्सरसाइजिंग मसल आपका होता है या आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, जो इमीडिएट बूस्ट आता है आपका एनर्जी का, दैट इज फ्रॉम द ग्लाइकोजन स्टोर्स stored in your body, especially in the liver. वो एकदम से ग्लाइकोजन स्टोर्स टूटते हैं और उनमें से ग्लूकोज रिलीज होता है और ग्लूकोज आगे फिर एंटर होता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर और टीसीए साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड अल्टीमेटली yielding few molecules of ATP depending on the need of the body and depending on the glycogen stores present in your body. ठीक है, so by doing all this, at first instance or in the beginning, प्रोटीन्स को स्पेयर कर दिया जाता है। ठीक है, और प्रोटीन स्पेयरिंग जो होती है क्यों जरूरी होती है आपकी बॉडी के लिए? बिकॉज इट कंजर्व्स योर मसल टिश्यू। आपका मसल बहुत ज़रूरी है, जो दैट इज़ कंसिस्टेड ऑफ प्रोटीन बेसिकली। ठीक है, तो अगर प्रोटीन राइट वे यूज़ होना शुरू हो जाएगी तो आपकी मसल वेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, इसी वजह से आपकी नेचर ने आपको ये मैकेनिज्म्स दिए हैं कि फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट जाएंगे, फिर लिपिड्स यूटिलाइज होते हैं, दे बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविजन ऑफ एनर्जी टू योर बॉडी, और लास्टली फिर प्रोटीन जो है उस वो यूज़ होती है इन प्रोलॉन्ग स्टारवेशन। इसके अलावा और भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ फंक्शंस हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के आपकी बॉडी के अंदर, विच इंक्लूड इट हेल्प्स प्रिवेंट कीटोसिस। ठीक है, बिकॉज जो जो आपके फैट्स हैं वो जब दे ब्रेक डाउन, दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कीटोन्स। इसके अलावा आप बचपन से सुनते आ रहे होगे कि कभी आपको होता है कि आप किसी एग्ज़ाम में जा रहे हो या कोई ऐसा जिसमें आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, काम करना है, तो आप एक कोई कैंडी खा लो या कोई आप थोड़ी सी मीठी चीज़ खा लो। ठीक है, तो इट्स वेरी ट्रू। ठीक है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ enhancing learning and memory by your brain. तो ग्लूकोज चाहिए होता है आपके ब्रेन को फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है, सो ग्लूकोज अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट्स के अंदर आप कंज्यूम करते हो तो आपकी लर्निंग और मेमोरी इफेक्ट होती है। ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑफ द फूड। सबसे पहले इसको अगर बिल्कुल शॉर्ट करें बिफोर गोइंग ऑन टू द ग्राफ मेंशन्ड ऑन द स्लाइड,
राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अगर आम ज़बान में देखा जाए तो इट्स बेसिकली, अब अगर इसको अपने वन वर्ड और टू वर्ड्स के अंदर बताना हो तो आप उसको कह सकते हैं, इट्स बेसिकली अ पोस्ट प्रैंडियल ग्लाइसीमिया। पोस्ट प्रैंडियल का मतलब क्या होता है? हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म बिफोर? जी जी जी, क्या क्वेश्चन है आपका? एमन का क्या क्वेश्चन है? सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स किनको रेकमेंड करते हैं? और ओके, सॉल्युबल फाइबर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो करते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर आपको कुछ ख़ास किस्म की डेफिशिएंसी सस्पेक्टेड हो, कुछ ख़ास विटामिन्स की, मिनरल्स की, और ऐसे लोग जिनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है दैट इज़ वे इंक्रीज इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल पॉपुलेशन, जिनके अंदर आपने डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो डाउन करना हो, उनके अंदर आप सॉल्युबल फाइबर्स देते हैं। वो डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है, बट उस टाइम लेने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके विटामिन्स को, मिनरल्स को या और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है आपके इंटेस्टाइन से, क्योंकि उनका ऑब्वियसली उनका जो जो BMR है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ऐसे लोगों का जिनके अंदर सॉल्युबल फाइबर्स एडवाइजेबल होता है, उनका तेज़ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो कुछ कुछ भी खाना खाते हैं एंड दे फील द अर्ज टू पास स्टूल राइट अवे। ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड मैनी पीपल इन योर लाइफ अराउंड, ठीक है, जो खाना खाते फौरन दे वांट टू गो टू द वॉशरूम, ठीक है, टू पास देयर स्टूल, वेयर एज सम अदर्स दे टेक सम टाइम, देयर बॉडी टेक सम टाइम, और वो 2 घंटे या 3-4 घंटे के बाद दे फील द अर्ज टू गो टू द वॉशरूम टू पास द स्टूल। ठीक है, उनका BMR शायद नॉर्मल होता है या रिड्यूस्ड होता है, इस वजह से उनको राइट अवे स्टूल या उनकी पेरिस्टाल्सिस जो होती है इंटेस्टिनल, वो इतनी ज़्यादा रैपिड पेस पे नहीं चल रही होती इन कंपैरिजन टू द दोज जिनका BMR तेज़ है या बेसल मेटाबॉलिक रेट तेज़ है। उनका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुआ होता है, इन्हांस हुआ होता है, जिसकी वजह से ट्रांजिट टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, जो भी खाते हैं आप वो बहुत जल्दी से पास ऑन होता है टूवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट्स रेडी फॉर द स्टूल इन कंपैरिजन टू द वंस जो कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म रखते हैं, जिनका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है। और इससे क्या होता है कि आपके न्यूट्रिएंट्स जो हेल्पफुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होने का उनको टाइम नहीं मिलता। तो सॉल्युबल विटामिन्स, सॉल्युबल फाइबर्स तो ऐसे लोगों को दिए जाते हैं। इनसॉल्युबल जो फाइबर्स हैं उनका क्या काम होता है? बेसिकली वो उन लोगों के अंदर दिए जाते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनसॉल्युबल इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये बल्क बनाते हैं फूड का। ठीक है, फूड के अंदर जो कंट्रीब्यूट करते हैं, ये दे ऐड अ बल्क ऑन इट। और करते क्या है कि एक जब आपका बल्क ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली इट ड्राइव्स योर इंटेस्टाइन टू प्रोड्यूस मोर पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, और आपकी कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होती है। ठीक है, और आपका स्टूल जो है वो इजीली रिलीज होता है। ठीक है, पास ऑन होता है। सो ये फ़ायदे हैं सॉल्युबल फाइबर्स के और इनसॉल्युबल फाइबर्स के। ठीक है जी जी। हैव यू गॉट द आंसर? आपको पता लग गया, डिफरेंस पता लग गया सॉल्युबल फाइबर्स और इनसॉल्युबल फाइबर्स के यूजेस का? जी, ओके ओके, नाउ वी मूव ऑन टू ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ द फूड नाउ। ओके, आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। अगर आपको दो लफ्ज़ों के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बताना हो तो आई मेंशन्ड अ टर्म कॉल्ड एज पोस्ट प्रेंडियल ग्लाइसीमिया। तो पोस्ट प्रेंडियल, हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म बिफोर? जी, हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म बिफोर? वेरी गुड। पोस्ट प्रेंडियल का मतलब होता है आफ्टर टेकिंग मील, और ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, सो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डिफरेंट फूड्स का डिफरेंट होता है। कुछ तो फौरन जाके बहुत ढेर सारा ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जिनको खाने के बाद आप अगर पोस्ट पेंडियल ग्लाइसीमिया चेक करो एकदम से इट विल बी शूटेड अप। ठीक है, और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो स्लो रिलीज करते हैं अपने ग्लूकोज कंटेंट को, ठीक, अपने कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को, और वो इतना ज़्यादा ग्लाइसीमिया प्रोड्यूस नहीं करते। दी दोज फूड्स आर कॉल्ड एज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। ठीक है, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस
पर्टिकुलर ग्राफ, ओके, अगर इसको इसके ऊपर इसकी बुनियाद पे इसको डिफाइन किया जाए तो इट इज़ बेसिकली द एरिया under the blood glucose curve seen after the ingestion of meal with carbohydrate rich food compared with the area under the blood glucose curve observed after a meal consisting of same amount of carbohydrate in the form of glucose or white bread. White bread alternative होता है ग्लूकोज का, ठीक है, जो वाइट ब्रेड आप नाश्ते में यूज़ करते हो, ठीक है, उसके अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो जो ओवरऑल इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर जाके देते हैं, दे दे इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। सो दो तरह के फूड्स हैं, एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है जिसको हम कह रहे हैं रॉ फॉर्म के अंदर किसी ने शुगर ले ली है, ग्लूकोज इंजेस्ट किया है, या फिर ब्रेड, वाइट ब्रेड इसका ऑल्टरनेटिव है, या फिर ऐसे फूड्स जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स तो रिच हैं मगर वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखते हैं, मतलब जिनके खाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज नहीं करता। इट इज़ इंडिकेटेड हेयर बाय टू कर्व्स, टू डिफरेंट लाइन कलर्स, वन इज इंडिकेटेड बाय द ब्लू, the other one is indicated by the red one. So we can say, for example, this is the normal range of blood glucose starting from 70 to 100, ठीक है, यहाँ कहीं फॉल करेगा, 100 यहाँ फॉल करेगा समवेयर अराउंड, ठीक है, जहाँ तक ये इसकी पीक जा रही है, ठीक है। सो दिस लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड व्हेन यू कंज्यूम, उसकी कर्व को फॉलो करेंगे तो इट विल नॉट एक्सीड द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन, 100 से ऊपर नहीं जाएगा ग्लूकोज आपका, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो यूटिलाइज हो जाएगा तो इट विल कम बैक टू नियर अबाउट द लोअर लेवल ऑफ द नॉर्मल रेंज ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इन कंपैरिजन जब आप कंपेयर करते हैं इसको किसी भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड से, ऐसा फूड जो कि शुगर कंटेनिंग है, और ऑल्टरनेटिव आपको बताया वाइट ब्रेड, ठीक है, जो शुगर के लोग होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनको वाइट ब्रेड बना की जाती है, ठीक है, क्योंकि वो इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ रैपिड इंक्रीज ऑफ योर ब्लड ग्लूकोज लेवल, और वो उसी को आपने प्रिवेंट करना होता है डायबिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो उनको ब्राउन ब्रेड जो है वो एडवाइस की जाती है इंस्टेड ऑफ वाइट ब्रेड, क्योंकि वाइट ब्रेड जो होती है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दे बिकम द सोर्स ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज इन योर ब्लड राइट आफ्टर टेकिंग इट, ठीक है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की? एक तो डिजीज़ मैंने आपको बता दी, डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको चूज़ी होना पड़ता है, अल्लाह ना करे अगर किसी को खुद से हो उसको अपने बारे में, और अगर आप एज अ डॉक्टर पेशेंट को डील कर रहे हो, किसी डायबिटिक को डील कर रहे हो, तो आपको उसको बताना है कौन से फूड्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखते हैं, जो कि एबिलिटी रखते हैं, जो कि एंटर होते ही आपकी बॉडी के अंदर राइट आफ्टर इंजेस्टिंग दैट फूड आपके ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ कर देंगे। ज़ाहिर है ऐसा फूड उसको नहीं आपने एडवाइस करना, आपने उसको ऐसा फूड एडवाइस करना है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो हो, आई मीन उसकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना, ठीक है। ये ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट उसको प्रिस्क्राइब करोगे एंड इट इज़ वेरी मच, आप कहोगे कि इट्स नॉट नॉर्मल, इनफैक्ट कि अगर कोई कहें कि जी बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ ना करे, कार्बोहाइड्रेट्स बिकम्स एसेंशियल पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का एक पूरा मेटाबॉलिज्म है जिसके थ्रू आपकी एनर्जी प्रोविजन होती है, जिसके थ्रू और ढेर सारे प्रोसेसेस जनरेट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंसेस बनते हैं। सो आपको बेसिकली डिफरेंशिएट करना है उन फूड्स के दरमियान में एज फार एज न्यूट्रिशन इज़ कंसर्न्ड, विच फूड्स आर ऑन high glycemic index and which foods on low glycemic index, ठीक है। वो एक चार्ट मिल जाएगा आपको, रूटीन की प्रैक्टिस में भी होता है, मिल जाता है, जब आप क्लिनिक्स पे काम करते हो, हॉस्पिटल्स में काम करते हो, उनके अंदर फूड्स की अलग से डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई होती है, आप इंटरनेट से निकालना चाहते हो वहाँ से भी पता लग जाएगा, और ख़ुद से कोई सर्च करना चाहता है अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज़ के लिए या आने वाले टाइम में अपने पेशेंट्स के लिए, तो वो आप आपको काफ़ी सोर्सेज से पता लग सकता है कि कौन से फूड्स ऐसे हैं जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखते हैं, और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखते हैं। अच्छा, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, एक तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल हो गया, फिर और कौन से किस्म के पेशेंट्स होते हैं जिनको आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स देने होते हैं? जी, कोई और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो आप देखने में आती हो रोज़मर्रा में?
जी फिर सो गई है क्लास सारी, nobody is answering. Very good, very good. Roll number 113, excellent. Heart diseases. आपको पता है ना, there's a term called as metabolic syndrome. Have you heard about it? बहुत ज़्यादा चर्चा है इस टर्म का पिछले 5-10 साल से। इसके लोग स्पेशलिस्ट बनते हैं, अब अलग से एक फील्ड बन गई हुई है। It consists of few things: increased blood pressure, increased cholesterol, and diabetes mellitus. ठीक है, ये 3 चीज़ों के ऊपर एक स्पेशलिटी बन गई हुई है। इसको जो ट्रीट करता है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम स्पेशलिस्ट कहलाता है। ठीक है, सो दीज हार्ट डिजीजेज आर इन क्लोज एसोसिएशन विद डायबिटीज़। ठीक है, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो कंट्रोल्ड है उसकी थ्रू आउट लाइफ, फिर तो कोई इशू नहीं है उसको। अगर उसकी कंट्रोल नहीं है बाय एनी चांस, बेशक वो उसकी कंप्लाइंस नहीं है मेडिसिन के साथ, या वो अपनी डाइट के ऊपर चेक नहीं रखता, या वो एक्सरसाइज नहीं करता, या जो भी बहरहाल सूरत हाल बनती है उसके साथ, उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता एंड प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए, काफ़ी महीनों के लिए उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स एलिवेटेड, देयर इज़ अ चांस फॉर डेवलपिंग हार्ट डिजीजेस। ठीक है, ज़्यादा ग्लूकोज होगा, ज़्यादा कन्वर्जन्स होंगी उसकी फैट्स के अंदर, इंटर कन्वर्जन्स। ठीक है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या क्या नुकसान हो सकता है? यू ऑल नो अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ठीक है, इट कैन क्लॉग योर ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स अगर क्लॉग होती हैं तो देयर इज़ अ चांस फॉर इस्कीमिया। इस्कीमिया होता है आपकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचेगी किसी भी हार्ट के टिश्यू को, किसी भी और पेरिफेरल टिश्यू को। अगर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? ब्लड क्या कैरी कर रहा होता है? ऑक्सीजन कैरी कर रहा होता है। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हाइपॉक्सिक स्टेट होगी। हाइपॉक्सिक स्टेट से इस्कीमिया हो सकता है, इस्कीमिया से आगे चल के इन्फाक्शन हो सकती है। ठीक है, एक बड़ी कॉमन टर्म आप रोज़मर्रा में सुनते होते हैं, जिसको आम जुबान में हार्ट अटैक का वर्ड यूज़ किया जाता है, मगर अगर उसको टेक्निकली अगर मेडिकली लैंग्वेज के अंदर बात की जाए तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक है, जो आपकी मायोकार्डियम है वहाँ प्रॉपर ब्लड सप्लाई किसी भी क्लॉगिंग की वजह से, किसी भी क्लॉट फंसने की वजह से, या नैरोइंग ऑफ द वेसल्स की वजह से वहाँ प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाती। ठीक है, सो इट रिजल्ट्स इन मैल फंक्शनिंग ऑफ द मायोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम जो हार्ट का मसल है, इट वुड नॉट वर्क प्रॉपरली, इट वुड नॉट पंप प्रॉपरली। आपका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, इरिथमियाज हो सकते हैं, एंड अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा अगर सिविरिटी आ जाए तो इट कैन कॉज डेथ इवन। सही है, तो दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, आपको ब्लड ग्लूकोज को भी नॉर्मल लेवल पे रखना है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नॉर्मल लेवल पे रखना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस। सो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स, इन शॉर्ट अगर आप बात करें, जो ऐसे फूड्स जो कि जिनको इंजेस्ट करने के फ़ौरन बाद आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए खाना खाने के बाद, इसका मतलब यू हैव कंज्यूम्ड फूड हैविंग अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और जिनके बाद आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल पे रहे, नॉर्मल रेंज में रहे, 70-100 से ऊपर ना जाए। ठीक है, तो वो आपके नॉर्मल ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स कहलाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ओके जी, नेक्स्ट पार्ट इज प्रोटीन्स। ठीक है, द रोल ऑफ प्रोटीन्स, द बेनिफिशियल इफेक्ट्स। ठीक है, द मेटाबॉलिक फंक्शंस व्हिच आर प्लेड बाय द प्रोटीन्स इन योर बॉडी। ठीक है, हमने अगेन वही बात करूँगा, आपने बहुत डिटेल में जीटी भी दे दिया हुआ, उसको पढ़ भी लिया हुआ। वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री, द केमिकल फॉर्मूलाज, द स्ट्रक्चर्स। वी आर नॉट हेयर फॉर दैट डिस्कशन। हम जनरल बातें करेंगे एज फार एज न्यूट्रिशन इज कंसर्न इन दिस टॉपिक। Okay, Ji, as we all know, just like carbohydrates, protein can also become a part and a good source for the energy for the body whenever needed. ठीक है, कितनी किलो कैलोरीज पर ग्राम प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं? let let me know कि if you can recall the very first lecture of nutrition or not. कितने किलो कैलोरीज प्रोटीन पर ग्राम प्रोवाइड करती हैं आपकी बॉडी के अंदर अगर ज़रूरत हो तो, या जो आप कंज्यूम करते हो तो? 4 kilocalories. What about carbohydrates? And what about lipids or fats? 9. Very good. ठीक है बेटा, ठीक है। ओके जी,
4 kilocalories per gram. That is the source of energy whenever the body consumes proteins या उनका breakdown होता है तो वो जो provision होती है वो per gram के लिहाज से होती है. That is 1 gram आपको 4 kilocalories as far as proteins are concerned. Essential for the synthesis of body tissue in growth, maintenance and repair. You name the thing and it contains protein in it. ठीक है. For example, collagen, hormones, enzymes, immune cells, DNA, RNA, all are composed of proteins. इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रोटीन के बगैर मुकम्मल कहलाएगी. ठीक है. तो इसकी सिग्निफिकेंस आपको इन चीज़ों के नाम पढ़ने से ही पता लग जाती है. ठीक है. इनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं प्रोटीन. ठीक है. अब एंजाइम्स की बात करें तो अगर प्रोटीन्स आपकी उसके अंदर प्रॉपर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो एंजाइम नहीं बनेगा. इम्यून सेल्स प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे. डीएनए डैमेज हो सकता है. डीएनए प्रॉपर अपनी अपनी जो उसकी जो प्रॉपर फॉर्म है, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है, उसके अंदर आरएनए, देन कम्स अ कोलेजन. छोटा सा मसला, छोटा सा एक प्रॉब्लम इन अ प्रोटीन स्ट्रक्चर कैन लीड टू सो मेनी एबनॉर्मलिटीज रिलेटेड टू कोलेजन. कोलेजनोपैथीज हो सकती हैं. आपने ईसीएम में पढ़ा है सारा कुछ. ठीक है. ओके जी. ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है. ये प्रोटीन फैक्टर्स हैं सारे. फ्लूइड रेगुलेशन, इसके अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन का नाम सुना होगा आपने. ठीक है. ये प्रोटीन्स आपके फ्लूइड को रेगुलेट कर रही हैं. एसिड बेस बैलेंस, प्रोटीन बफर का एक अलग से नाम है. ठीक है. आपके 4 बड़े बफर सिस्टम्स होते हैं बॉडी में जो फ्लूइड मेंटेन कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हैं, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हैं. बाइकार्बोनेट बफर है उसके अंदर. ठीक है. फॉस्फेट बफर है, हीमोग्लोबिन बफर है और उसके साथ साथ प्रोटीन बफर भी है. ठीक है. ऑल ऑफ देम रिक्वायर प्रोटीन. तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप एज फार एज न्यूट्रिशन इज़ कंसर्न. जब आप बात करते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी होती है प्रोटीन्स की, तो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. जिन लोगों ने वेट रिड्यूस करना होता है उनको आप कह देते हो कार्बोहाइड्रेट कट ऑफ कर दो. ठीक है. आप लिपिड्स जो हैं या फैट्स जो हैं वो कट ऑफ कर दो अपनी डाइट से. ठीक है. कम कर दो. मगर प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट कही जाती है बिकॉज due to the fact it is responsible for the structure and function of many of the organ systems in your body. ठीक है. सो प्रोटीन्स की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी के अंदर. बेसिक स्ट्रक्चर की बात सिर्फ इतनी ही करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. इट इज़ कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. CHO अगर अकेला है तो दैट इज कार्बोहाइड्रेट. इफ नाइट्रोजन गेट्स एडेड टू इट, इट बिकम्स अ प्रोटीन. आपको पता होना चाहिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं. चलें इसको भी रिवाइज करते हैं. जस्ट रिकॉल योर प्रीवियस टॉपिक जो आपने प्रोटीन केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसके अंदर से मुझे बताइए जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी एसेंशियल कौन से होते हैं और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं. जी मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी रोशान, आई थिंक यू नीड टू चेक योर इंटरनेट कनेक्शन. it's all okay from here. जी it's all okay from here. जी आप अपना इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल. जी is your internet connection stable now? जी there was a student who was saying कि आवाज़ सही नहीं आ रही. Is your internet, can you hear me now? जी roll number 128. जी roll number 128. Can you hear me? Okay, all right. चलो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. ओके जी. आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. जी एसेंशियल आर सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी.
ये किसने आंसर किया भाई? एक सेकंड ठहरो जरा ऊपर जी। हु सेज essential amino acids can be synthesized by the body? जी। Then what about non-essentials? जी, essentials are ones which you require from external source. आपको खाने के अंदर लेने ही लेने हैं, because body is unable to make it or synthesize it. और नॉन एसेंशियल्स जो होते हैं वो एसेंशियल की हेल्प से या दूसरे फैक्टर्स की हेल्प से बॉडी के अंदर बन सकते हैं। इस वजह से आपको इतनी ज़्यादा उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर से लेने के लिए। जी जी। एसेंशियल मतलब डाइट में एसेंशियल है तो एसेंशियल है, आपको खाने ही खाने हैं। जो नॉन एसेंशियल है वो नहीं भी खाएंगे तो आपकी बॉडी इज सफिशिएंट, कैन प्रोड्यूस इट इन सफिशिएंट अमाउंट्स। जी ठीक है ओके ओके। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, ठीक है। कंप्लीट प्रोटीन कौन सी होती है? मीट खा रहे हैं आप, रॉ मीट, ठीक है, उसको कुक करके खा रहे हैं। इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन, कंटेन्स ऑल द अमीनो एसिड्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, दूसरी प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स जिनके अंदर सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते, ठीक है, जिनको खाने से आपके अंदर हो सकता है कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स ना आए। ये एक लिस्ट है, ये आपने पहले पढ़ी हुई है। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रेओनीन, ट्रिप्टोफैन, मेथिओनिन, हिस्टिडीन, वेलिन एंड फेनिलएलनिन, ठीक है। दिस इज द लिस्ट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स का पूछा जा सकता है। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज आपको सोर्सेज आइडेंटिफाई करनी है, कौन कौन सी सोर्सेज हैं जिनके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो किसी के अंदर कि उसको एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर ये डेफिशिएंट है, कोई पर्टिकुलर पेशेंट या पर्सन, तो उसको आपने कौन सी डाइट प्रिस्क्राइब करनी है। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन बैलेंस। ओके, देयर इज अ इनटेक, देयर इज अ आउटपुट, देयर आर टू थिंग्स। एक तो आप जो प्रोटीन डाइट कंज्यूम कर रहे हो, नाइट्रोजन आ रहा है उसके साथ आपकी बॉडी के अंदर, और फिर आफ्टर प्रोसेसिंग इट, आफ्टर यूटिलाइजिंग इट, आफ्टर गोइंग थ्रू मेटाबॉलिज्म्स, फिर जो वेस्ट बचता है नाइट्रोजन का, दैट हैज़ टू बी सेक्रेटेड आउट, ठीक है। जो कंज्यूम कर लिया आपकी बॉडी ने नाइट्रोजन, उसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो आपकी बॉडी से बाहर भी निकलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ नाइट्रोजन बैलेंस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से नाइट्रोजन बैलेंस इज इक्वल टू जीरो, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द इनटेक ऑफ नाइट्रोजन is equal to the output of nitrogen in the urine, in the sweat, feces, in the form, different forms, ठीक है। अमोनिया की फॉर्म हो सकती है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, ये सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजन की। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट। Nitrogen balance can be controlled by different factors that include diet and hormones. Normally, hormones control the protein anabolism and catabolism to maintain the nitrogen balance. अब यूरिया साइकिल पढ़ेंगे अभी आगे चल के, अभी नहीं पढ़ा, उसके अंदर ढेर सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है। फिर आपने ट्रांसएमाइनेजेस का नाम सुना होगा, डीमाइनेजेस का नाम सुना होगा, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा आपके एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कि कंट्रोल करते हैं। फिर इंसुलिन की अगर बात करें, ठीक है, तो वो भी इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। फिर आप ग्रोथ हार्मोन का नाम सुना होगा, फिर आपने सेक्स हार्मोन्स का नाम, टेस्टोस्टेरोन का नाम सुना होगा, फिर आपने थायरॉक्सिन का नाम सुना होगा जो हम पीछे आयोडीन के केस के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टीरॉइड्स का नाम सुना होगा, ठीक है। सो ऑल दीज हार्मोन्स प्ले अ रोल along with different enzymes in maintaining nitrogen balance. Look at this diagram. For instance, these are dietary proteins which you consume. After entering into the body, they provide your body a amino acid pool. एक अमाइनो एसिड पूल बन जाता है। अगर उस अमाइनो एसिड पूल में से कुछ प्रोटीन बनानी है आपकी बॉडी ने, फॉर एग्जांपल टिश्यू प्रोटीन बनानी है, यू विल कॉल इट प्रोटीन एनाबोलिज्म,
या द प्रोसेस ऑफ एनाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, उन टिश्यू प्रोटीन्स जब वो टूटती हैं, ठीक है, और उनकी जगह नई बननी है, फिर दोबारा वो तो एनाबोलिज्म से बनेंगी। देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज प्रोटीन कैटाबोलिज्म, और उस कैटाबोलिज्म की वजह से जितना नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी इन द डिफरेंट फॉर्म्स। स्टेट में भी जा सकता है, यूरिन में भी जा सकता है, फीसिस में भी, मेनली यूरिनरी होता है। ठीक है, सो you need to recognize those hormones which are responsible for protein anabolism from the amino acid pool provided by the dietary proteins in the body. ठीक है, you consume proteins, goes to the stomach, goes to the intestine, वहाँ से absorb होके बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, उसमें ढेर सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, उनका एक पूल जनरेट हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। उससे आगे उन अमीनो एसिड्स ने मिलके आगे टिश्यू प्रोटीन्स बनानी है, जिसको हम कह रहे हैं प्रोटीन एनाबोलिज्म का प्रोसेस। कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्रोटीन एनाबोलिज्म को एनहांस करते हैं? नंबर 1 इज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, वाया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF। Number 2 are sex hormones. Number 3 is insulin. And number 4 is thyroxine. इन चारों हार्मोन्स की अगर डेफिशिएंसी हो तो आपकी प्रोटीन्स प्रॉपरली एनाबोलिज्म नहीं कर सकती, टिश्यू प्रोटीन्स डिफेक्टिव रह जाती हैं, प्रोटीन्स की का स्ट्रक्चर सही नहीं बन पाता, उनकी फंक्शनिंग सही नहीं हो पाती। किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ना हो, ठीक है, मसल वेस्टिंग आएगी। सेक्स हार्मोन्स प्रॉपर ना हो, उसका मसल बिल्ड कम होगी। ठीक है, वन एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट टेस्टोस्टेरोन, मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। ठीक है, अगर लीन बॉडी मास देखा जाए, मसल मास देखा जाए, मेल्स का मसल मास ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। ठीक है, इंसुलिन डेफिशिएंट हो जाए, अगर डायबिटीज़ हो जाए तो उनके अंदर मसल वेस्टिंग इज अ चीफ कंप्लेंट। थायरॉक्सिन इफेक्ट करता है टिश्यू प्रोटीन्स को। ठीक है, अगर थायरॉक्सिन कम या ज़्यादा होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट हो सकती है। ओके, देन कम्स अनदर सेट which are called as catabolic hormones. For example, there's a formed protein, there's a tissue protein which has already been formed in your body, and it has to undergo the catabolic process called as protein catabolism. So catabolic hormones are glucocorticoids. ठीक है, so 4 versus 1, जो एनाबोलिज्म करवा रहे हैं, जो एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स, इंसुलिन एंड थायरॉक्सिन, बच्चों के अंदर खास तौर पर। और ऐसे हार्मोन्स जो कि प्रोटीन कैटाबोलिज्म करवा रहे हैं वो कौन से हैं? वो सिर्फ एक तरह के हार्मोन्स हैं जिनका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है जी, ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बैलेंस। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, आपको इसका पता होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको इसको आंसर करना है। ठीक है, ओके, सिंपल नाइट्रोजन बैलेंस क्या है? दैट मींस आपके नाइट्रोजन इनटेक डज नॉट इक्वल does equal nitrogen output, that is a not nitrogen balance। और नाइट्रोजन इम्बैलेंस कब होगा? जब इनटेक जो है वो इक्वल नहीं होगी आउटपुट के नाइट्रोजन की, तो यू विल कॉल इट नाइट्रोजन बैलेंस। अब इनटेक भी ज़्यादा हो सकती है, आउटपुट भी ज़्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट is increased, we call it, yeah, we further subdivided it into 2 categories. One is positive nitrogen balance, the other one is negative nitrogen balance. Okay, let's talk about positive nitrogen balance first. It simply means whatever you consume in the form of protein, in the form of nitrogen, that will exceed the nitrogen excreted out from your body. ठीक है, जितना आपने कंज्यूम किया, आपकी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड पूल बना, आपकी टिश्यू प्रोटीन्स का एनाबोलिज्म हुआ, ठीक है, मगर जितना आपने कंज्यूम किया उतना आउटपुट नहीं हुआ उसका।
मतलब ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, कैटाबॉलिज्म इज अफेक्टेड. So it will be accompanied by weight gain due to increased tissue protein stimulated by anabolic hormones. जो हमने पिछली स्लाइड पे 4 anabolic hormones, let's recall कौन कौन से 4 anabolic hormones थे जो कि which help in. जी, कौन कौन से 4? थायरॉक्सिन, वेरी गुड, बच्चों के अंदर थायरॉक्सिन, उसके अलावा और सेक्स हार्मोन और जी और इंसुलिन और शाबाश एक और रह गया, ग्रोथ हार्मोन. और कैटाबॉलिक हार्मोन कौन सा है? जी, कैटाबॉलिक हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. वेरी गुड. ओके जी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन इनटेक विल बी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन आउटपुट. इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. टक्कर्स इन नॉर्मल ग्रोथ, आपको प्रोटीन मास बनाना हो रहा होता है, आपका मसल मास. आप छोटा बच्चे को देखें, फिर उसकी टीनेज को देखें और उसको एडल्टहुड में देखें, ऑब्वियसली यू कैन इजीली कंपेयर द मसल मास प्रेजेंट इन ऑल दी स्टेजेस. ठीक है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन और अदर हार्मोन्स, नॉर्मल ग्रोथ का पार्ट होता है यूजली बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस. आपको कंज्यूम ज़्यादा करना होता है, आपको एक्सक्रीट आउट कम करना होता है, बिकॉज ऑल ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग proteins, the protein structure, the muscle mass. During the period of convalescence, have you heard about this term before? किसी को आइडिया है कॉन्वेलेसेंस को किसको कहते हैं? जी, very good. It is basically a recovery from some illness. For example, somebody had some problem, some disease, bedridden, hospitalized, ठीक है, and he is recovering from that infection. उस टाइम के ऊपर क्या होगा? Your body would need more proteins in order to compensate all the loss. The loss किन चीज़ों का? Different types of cells, ठीक है, immune cells for example, ठीक है, जो कंज्यूम हुए हैं आपको टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन. ठीक है, कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर आरबीसीज का काउंट गिर गया, डब्ल्यूबीसी का काउंट गिर गया, दोबारा से बनने हैं. ठीक है, कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर मसल वेस्टिंग हुई, दोबारा से मसल्स ने अपनी अपनी अपने स्ट्रक्चर को, अपने मास को दोबारा से रिज्यूम करना है. ठीक है, रिकवर करना है. देन वेरी गुड एग्जांपल इज प्रेगनेंसी. ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है? देयर आर टू लाइफ्स, ठीक है, गोइंग साइड बाय साइड. मदर ने अपना भी प्रोटीन का इनपुट लेना है और एट द सेम टाइम जो बेबी ग्रो कर रहा है उसके अंदर ढेर सारी चीज़ें बन रही हैं. ठीक है, माइक्रो लेवल से शुरू कर लें और माइक्रो लेवल तक जाएं. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी बढ़ता है, ज़ाहिर है. आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम द फीटल पोल, जब बिल्कुल शुरू में अपीयरेंस आती है बेबी की 6-7 वीक्स ऑफ द एंटीनेटल लाइफ. ठीक है, जो उस से लेके जो 9 मंथ्स का पूरा बेबी बनता है 40 वीक्स तक, उसमें ज़ाहिर है उसका स्ट्रक्चर बनता है, वो प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा ढेर सारी जो माँ ने खानी है वो सारी की सारी ज़ाहिर है उसने भी कंज्यूम करनी है. तो इस वजह से पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस की फॉर्म स्टेट के अंदर बॉडी होती है. ठीक है, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं. लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस. एग्जैक्टली द ऑपोजिट what we discussed about positive nitrogen balance. That means the nitrogen intake will be less in comparison to the nitrogen output. इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, प्रोटीन ज़्यादा टूट रही है. ठीक है, एंड इट इज़ यूजली accompanied by weight loss due to tissue protein breakdown caused by diseases or lack of dietary protein. ठीक है, दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं. या तो आप डाइट के अंदर प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले रहे और अंदर आपकी बॉडी एक ऐसी डिजीज स्टेट के अंदर है जिसके अंदर टिश्यू ब्रेकडाउन हो रहा है. ठीक है, ऊपर हमने पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में एक टर्म पढ़ी थी कॉन्वलेसेंस, दैट वाज रिकवरी फ्रॉम इलनेस. मगर जो इलनेस का पीरियड है उसके अंदर नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा टिश्यू ब्रेकडाउन हो रहा होता है आपका. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं इसके ऊपर नज़र मार लें. स्टारवेशन, प्रोलॉन्ग टाइम कोई
किसी को डाइटरी डेफिशिएंसी हो गई है, प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर रहा हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा इंटेक कम हो जाएगा, आपकी प्रोटीन्स टूटना शुरू करेंगी। इसलिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स टूटेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, फिर कुछ टाइम गुजरेगा, लिपिड्स वुड कम इनटू एक्शन, प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। उसके बाद लास्टली आपकी प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन शुरू होगा, मसल वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, और जाहिर है उसका बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन तो निकलना है, और वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। जब आप मेजर करोगे इनटेक को आउटपुट से, तो आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे the body is in a state of negative nitrogen balance. Wasting diseases, कैंसर, पैरालिसिस, ठीक है, इनके अंदर भी नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है, इसके अंदर क्यों, हमने एनाबॉलिक हार्मोन्स और कैटाबॉलिक हार्मोन्स पढ़े थे। एनाबॉलिक हार्मोन्स में इंसुलिन वाज वन ऑफ देम। डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलिन नहीं होता, इसका मतलब एनाबॉलिज्म कम होगा, ठीक है, एक हार्मोन कम हो गया आपका जो एनाबॉलिज्म करा रहा था, और बड़ा की हार्मोन है, तो कैटाबॉलिज्म के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मसल वेस्टिंग हो सकती है। तो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में मोर एंड मोर नाइट्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रेक डाउन और मसल वेस्टिंग, और या टिश्यू ब्रेक डाउन, और ज़्यादा जितनी बनेगी ज़्यादा आपकी बॉडी हैज़ टू गेट रिड ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, या उसके अंदर स्वेट के अंदर, या फीसेस के अंदर। एक्सेस ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम हमने पहले भी एक जगह पे पढ़ा था, कुशिंग डिजीज और सिंड्रोम, ठीक है। हम दोबारा ये टर्म आई है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा हो जाए, वी डिस्कस्ड अर्लियर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स द ग्रुप ऑफ हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन ब्रेकडाउन को एनहांस करते हैं, ठीक है। सो ये सारे कॉजेज हैं नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस के लिए, ठीक है जी। ओके जी, नाइट्रोजन बैलेंस को ही कंटिन्यू करते हुए कुछ तो एक दो चीज़ें और देख लेते हैं इसके बारे में। नॉर्मल हेल्दी एडल्ट इज सेड टू बी नाइट्रोजन बैलेंस बिकॉज द डाइटरी इनटेक इक्वल्स द डेली लॉस थ्रू यूरिन, फीसेस और स्किन। सो वी कैन, अगर इक्वेशन फॉर्म के अंदर लिखना हो तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डाइटरी इनटेक स्टैंड्स फॉर, आई स्टैंड्स फॉर डाइटरी इनटेक इज इक्वल टू यू यूरिन प्लस फीसेस प्लस स्टूल, फीसेस तो स्टूल हो गए, स्किन, ठीक है, यूएफएस। तो इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं अगर इसको लिखना हो नाइट्रोजन बैलेंस को, ठीक है। मतलब इट इन शॉर्ट बेसिक आइडिया इज इनटेक शुड बी इक्वल टू द लॉसेस या आउटपुट, ठीक है। इट शुड बी इक्वल, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन बैलेंस। ये इक्वल नहीं है, कोई एक साइड ज़्यादा है, कोई एक साइड कम है, इधर वे, तो आप उसको कहेंगे नाइट्रोजन इम्बैलेंस। पॉजिटिव उस सूरत में होता है जब इनटेक ज़्यादा हो जाती है और आउटपुट कम होता है। आपको बता दिया है कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में, ठीक है। तो उसको आप बोलेंगे पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसके अंदर आपका इनटेक कम होता है और आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। वो भी आपको हार्मोन्स बता दिए और आपको साथ उसकी एग्जांपल्स भी बता दिए। सेम चीज़ है, कुछ इसके अंदर एग्जांपल्स शायद थोड़ी ज़्यादा आ जाएंगी, ठीक है। ग्रोथ, प्रेगनेंसी, मेंटेनेंस ऑफ लीन मसल मास, वाइटल ऑर्गन्स, वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग इज़ अ न्यू टर्म, जाहिर है, ठीक है। आपको वुंड हीलिंग के अंदर भी ज़रूरत पड़ती है कि ज़्यादा जितना प्रोटीन करेंगे यूटिलाइज, वो सारा का सारा वुंड हीलिंग के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। और आपकी टिश्यू प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके अंदर, ठीक है। और आपका जो नाइट्रोजन लॉस है वो कम होगा, तो इस वजह से पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो सकता है। एक्स्ट्रा नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग, रिपेयरिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, इसमें कुछ एग्जाम्पल ज़्यादा हैं इसलिए स्लाइड डाली थी। इन्फेक्शन, सेप्सिस, मोर लेस द सेम थिंग, फीवर, स्टारवेशन, हेड इंजरी, ट्रॉमा और बर्न्स, ठीक है। इनके अंदर नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस की स्टेट में आपकी बॉडी जा सकती है। ये एक डायग्राम है, इसको देख लीजिए, ठीक है। ये बॉडी प्रोटीन्स हैं, एनाबॉलिज्म, अमीनो एसिड पूल,
वट एवर यू कंज्यूम थ्रू डाइट, एब्जॉर्प्शन हुई अमीनो एसिड पूल बन जाता है, ठीक है। एनाबोलिज्म हो सकता है, कैटाबोलिज्म होके दोबारा अमीनो एसिड पूल में आएगा, अमीनो एसिड पूल से लॉस हो सकता है थ्रू स्किन, हेयर, स्वेट, यूरिनरी नाइट्रोजन, यूरिया, क्रिएटिनिन की फॉर्म के अंदर और फीसेस के अंदर। There are different factors which can affect nitrogen balance, such as growth, hormones, pregnancy, convalescent stage, acute illness. ये हमने पढ़ लिया है पहले। Proteins in nutrition, अगर इनको in short बात की जाए तो when enough carbohydrates are present in diet, the amino acids are not used for yielding energy. This is known as protein sparing effect of carbohydrates. The metabolic intermediate of carbohydrate pyruvate can be converted into amino acid alanine upon heating. ठीक है। So this is called as protein sparing effect. Protein spare हद कोशिश होती है आपकी बॉडी की प्रोटीन को स्पेयर कर लिया जाए, ठीक है। एक तो मसल मास बनाती है, फिर आपके जितने भी हार्मोन्स हैं, आपके एंजाइम्स हैं, आपके आरएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स प्ले अ रोल इन स्पेयरिंग द प्रोटीन। वो पहले फर्स्ट लाइन आते हैं, एनर्जी सोर्स बनते हैं और प्रोटीन को स्पेयर कर देते हैं। ड्यूरिंग स्टारवेशन अमीनो एसिड्स में एक्ट एज एनर्जी सोर्सेज, पहले हम बात कर चुके हैं। एंड प्रोटीन्स आर द ओनली सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हाउ प्रोटीन फंक्शंस इन द बॉडी, ये इसके बारे में भी हमने ब्रीफली इसको देख लिया है। आपको अगर क्वेश्चन आए जो सिंपल सा क्वेश्चन, 1-2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको बताना चाहिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविजन ऑफ स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द टिश्यूज डिपेंडेंट ऑन योर प्रोटीन इनटेक, regulation of body processes such as hormones, enzymes, nucleoproteins, RNA, DNA, structure, उनकी functioning, development of immunity, जितने immune cells हैं आपके वो सारे के सारे proteins होते हैं, उनका component होता है protein, circulation of blood and nutrients, backup source of energy। ठीक है जी, ओके जी। Okay, I'm finishing my lecture here. We will start from the RDA, recommended RDA for protein in different age groups from the next lecture on। और next lecture जो है वो मरासमस और क्वाशरकर के बारे में डिटेल में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो डिजीज़ के बगैर इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पीडियाट्रिक्स, ठीक है। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट बना के आइएगा, तो फिर ज़्यादा इंटरैक्टिव लेक्चर भी कर सकते हैं और आपको समझ भी बेहतर आएगी। तो मरासमस और क्वाशरकर, दीज आर टू प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन स्टेट्स, जिनको आप थोड़ा सा ओवर द वीकेंड पढ़ लीजिएगा। एंड फ्रॉम मंडे हम फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? जी, आई विल मैं आप जस्ट लाइक एवरी लेक्चर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगा, पहले आपको कंट्रीब्यूशन भी करूंगा, और अगर आप फिर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग किसी को नहीं हो रही होगी, क्वेश्चंस होंगे तो उसको आंसर करूंगा इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? ओके जी, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द lecture, paying your attention। See you on Monday, inshallah. Allah Hafiz.